That's why बयानबाजी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला का तेल उद्योग पूरी तरह से नाकाम हो गया और वहां उत्पादन बेहद कम हो गया। उन्होंने बताया कि अब अमेरिकी तेल कंपनियां वहां अरबों डॉलर निवेश करेंगी और क्षतिग्रस्त तेल ढांचे को दोबारा खड़ा करेंगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका दूसरा और बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave if we needed to do so. We actually assumed that a second wave would be necessary, but now it's probably not. The first wave, if you'd like to call it that, the first attack was so successful, we probably don't have to do a second, but we're prepared to do a second wave, a much bigger wave, actually. This was pinpoint, but we have a much bigger wave that वेनेजुएला के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जा सकते हैं तो पीएम मोदी भी पाकिस्तान जाकर 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को भारत क्यों नहीं ला सकते। उन्होंने कहा कि देश को आतंक के गुनहगारों से न्याय दिलाने की जरूरत है। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। तो मेरे भाई, मुझे मालूम कि आज के भाषण के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दुनिया भर में युद्ध रोकने में अपनी अहम भूमिका बताई है। उन्होंने कहा कि वे अब तक कुल 8.25 युद्ध सुलझा चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद है को उन्होंने हाल ही में खत्म कराया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में फिर से झड़प शुरू हो गई थी, लेकिन उन्होंने 5 घंटे के भीतर मामले को सुलझा लिया। Are you mad at him right now? I mean, there's this I'm not intelligence. thrilled with Putin. I'm not thrilled with Putin. He's killing too many people. I thought that would be so. I settled 8 1/4 war. You know what the 1/4 was? Thailand and Cambodia. I did it again. They broke out, and I did it in about 5 hours, and I settled it. I'm giving myself 1/4, so I'm up to now 8 1/4. In other words, I settled the war, but then they broke out. They had a pretty bad breakout over the last 4 days. I got them to go back to peace. So I only give 1/4. I thought the easiest one would be, one of the easier ones would be Russia, Ukraine. It's not. And they both have done some pretty bad things. And look, that's Biden's war. That's not my war. But I want to stop the lives. Did you see where last month, 30,000, it was 27.
27,000 the month before. 30,000, mostly soldiers, were killed this last month. 30,000. I want to stop that. You know, I got NATO to pay 5% instead of the 2% that they weren't paying. They weren't paying 2, now they pay 5. And we send them a lot of munitions. We send them a lot of things, missiles and various other things, a lot. And they pay. The United States is not losing money. We're probably making money on that. It's the last thing I care about. I just want to stop all those people. We're losing 25, 30,000 human beings. They come from 2 places that are very far away. But if I can stop, because it's something I've been pretty good at doing, deals, I guess. It's all a deal. Life is a big deal. But if I can stop that war and stop... कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कांग्रेस नेता मौसम नूर की पार्टी में वापसी पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि मौसम नूर के पिता गनी खान चौधरी कांग्रेस पार्टी के महास्तंभ थे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि कांग्रेस फिर से मजबूत हो और पार्टी उस उम्मीद को पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। आप लोगों को याद नहीं होगा, ABA गनी खान चौधरी एक कांग्रेस पार्टी के महास्तंभ थे और इंदिरा जी हमेशा उनको बहुत सम्मान के साथ बात करती थी। कैबिनेट मंत्री थे और मुझे आज भी याद है कोयला मंत्रालय की जिम्मेदारी वो संभाले थे और जिस तरीके से वो अपने मंत्री पद पर रहकर काम किया, मंत्रालय के लिए, सरकार के लिए, पर सबसे महत्वपूर्ण बात कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं बहुत कम लोगों में देखा हूं, बिल्कुल 100% सेक्युलर, 100% नेशनलिस्ट है तो बरकत गनी खान चौधरी। और आज भी लोग गनी खान चौधरी का नाम याद करते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सांसद इशाक खान चौधरी हैं, उनके भाई के बेटे, उनके पिताजी भी एक सांसद हुआ करते थे, मेरे अच्छे दोस्त थे। और मुझे और भी खुशी है कि हमारे नूर जो 2 बार सांसद थी मालदा साउथ से और यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, उनका घर वापसी हुआ है आज। और जैसा कि मीर साहब ने कहा, कांग्रेस जिंदा है पश्चिम बंगाल में, इसमें कोई शक या 2 राय नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस जिंदा है, फिर कर उभर कर आएगी। कांग्रेस पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि कांग्रेस और मजबूत हो और हम लोगों की जो आशा है उसको हम पूरा करने के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय पर हमला बोला है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 11 जनवरी तक कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा नहीं लिया गया तो वे इंदौर में धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर बीजेपी नेताओं की चुप्पी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोहन यादव जी की रीढ़ की हड्डी है तो उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए। 16 लोगों को सिर्फ कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर करने से उनका मुआवजा नहीं मिलता है। सिस्टम का फेलिवर है, करप्शन उसका मूल हथियार है। जिन लोगों के ठेकों में हिस्सेदारी है वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं और मेयर को, निगम आयुक्त को और जो संबंधित लोग हैं उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। लीपा पोती करके 2 लाख का मुआवजा देके 16 मुद्दों का हिसाब नहीं दिया जा सकता। 2 लाख रुपए तो मोहन यादव के अधिकारी सुबह विजिट पे गए पंचायत में तो 1.5 लाख के फ्रूट खा गए, काजू बादाम खा गए और 2 लाख का आप मुआवजा देते हैं। एक जान की कीमत 2 लाख रुपए रखते हैं। ये अपने आप में अन्याय है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ 11 तारीख को पूरे इंदौर में पूरे प्रदेश स्तर का आंदोलन करेगी। या तो 11 तारीख तक कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा लो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इंदौर में इस अभियान को हजारों लोगों के साथ मां अहिल्या की नगरी में मां अहिल्या के चरणों में बैठकर मजबूर करेगी सरकार को कि जिस मंत्री का दायित्व था वो उसके कारण मौत हुई, 16 लोगों की उसका इस्तीफा होना चाहिए। FIR महापौर पे होना चाहिए, अन्यथा पूरे प्रदेश की कांग्रेस 11 तारीख के दिन
मां अहिल्या के चरणों में जाएगी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश लगातार हादसों का गवाह बनता जा रहा है और आम लोगों की जिंदगियों की कोई कीमत नहीं रह गई। मनोज झा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शासन में सुधार की जरूरत थी, लेकिन सरकार केवल विज्ञापनों के दम पर चल रही है। 2 लाख रुपए उसे संवेदना विहीन बताया। नहीं, देखिए, मैं लगातार इस बात की पहले भी 2 दिन से इस पर चर्चा हो रही है। उमा भारती जी हों, राहुल जी हों, या वो पत्रकार हो जिस पर बड़ी ओछी अशोभनीय टिप्पणी मंत्री महोदय ने की, वहीं के हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, हम हादसों के देश में तब्दील हो रहे हैं। आम जिंदगियां मायने नहीं रखती है, वो नंबर है, आंकड़ा। जिस परिवार से चिराग बुझाना, उसका नाम आंकड़ा सिंह, आंकड़ा राम, आंकड़ा फलाना, आंकड़ा ढिमकाना नहीं है। वो बच्चा है, बच्ची है, वो उस परिवार का है। आप मुआवजा देकर के सोचते हो ना कि आपने इतिश्री कर ली। एक पूरा जो कोर्स करेक्शन हमारी गवर्नेंस का होना चाहिए था, वो नहीं है। विज्ञापनों में सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री जी जापान से लेकर अमेरिका घूम रहे हैं और सबसे स्वच्छ शहर है, न जाने कौन से मानदंड है। मानसिक स्वच्छता और पारिस्थितिक स्वच्छता, दोनों में सम्मिश्रण आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में कॉलेज छात्रा की संदिग्ध मौत पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह दिल दहला देने वाली घटना है और मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि इस मामले की जांच एनआईए से कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों के साथ और जिस प्रकार से घटना का स्वरूप हमारे सामने आया है, ये बिल्कुल दिल दहलाने वाली घटना एक तरह की है। जिस प्रकार से बहुत बड़े उत्पीड़न के दौर में से वो बेटी गुजरी है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज भले ही मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए हैं, शायद में कल एक टीचर को सस्पेंड करने के आदेश किए हैं, मैं समझता हूं कि सारे पक्ष को बारीकी से इसकी गहन जांच होनी चाहिए और किसी जांच के नतीजे में पहुंचने से पहले जो है जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। कुल मिलाकर के मामला बहुत गंभीर है और एक तरह से कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला भी है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ अरसे से घटनाओं का क्रम कानून व्यवस्था की दृष्टि से इस प्रकार से गठित होता देख रहे हैं हम प्रदेश में, जहां सब जगह बहुत बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं सरकार के ऊपर। चाहे ऊना में गोलीकांड की घटना है, चाहे शिमला में डॉक्टर्स और पेशेंट की आपस में जो है वो स्कफल हुआ, उनके लात घुसे एक दूसरे के खिलाफ चले तो अल्टीमेटली उसमें कॉम्प्रोमाइज हुआ आपस में बैठ करके। और उसी तरह से नालागढ़ में घटना घटित होती है अभी, और ऐसी घटनाओं का क्रम हिमाचल प्रदेश में लगातार जो बना हुआ है, निश्चित रूप से वो चिंता का विषय है। देखिए, अभी तक इस सारी चीज की पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि एक संगठन का उसमें नाम आया है जिस संगठन ने इसकी जिम्मेवारी ली है। अगर ऐसा है तो और भी चिंता का विषय बनता है। और मेरा तो ये कहना है कि एनआईए के माध्यम से इसकी जांच। लखनऊ में भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के सिलसिले में हजरतगंज पुलिस थाने पहुंची। उन्होंने कहा कि उनका बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। नेहा ने कहा कि ये मामला पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी एफआईआर का है। यहाँ पर थाने पे बुलाकर के सिग्नेचर जो कराया, हाँ, मुझे एक पहला नोटिस दिया गया था आज से 14-15 दिन पहले। तब मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, तो मैंने बताया था कि लेटर के माध्यम से कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, बाकी आप मुझसे फोन पे, वीडियो कॉल पे संपर्क कर सकते हैं। तो फिर दूसरा नोटिस भी आया हुआ था और उसमें ये लिखा गया था कि 3 दिन के अंदर आपको विवेचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना है। तो आज मैंने नोटिस देखा और मैं आज आ गई। जांच क्या लगता है सही दिशा में जा रही है पूरी तरीके से? अब देखते हैं। अभी तो कोई दिशा ही नहीं हुई है, बनी है। अभी तो आज मैं आई हूँ, मेरा बयान अभी नहीं दर्ज किया गया है, तो अभी मैं क्या बताऊँ कि किस दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all